अस्सलाम वालेकुम अरीबा, कैसी हैं आप? I'm good. How are you? I'm good, I'm good. Thank you so much for joining the session. So, Well, how's thank you so much for everything? having me. Thank you so much. Just for the audience, can you just tell about yourself, what you're doing right now? Yeah, so this is Ariba, everyone, and currently I'm a senior media planner at Adcom Zenith, and I'm working on Halion. And so Adcom Zenith is affiliated with Publicis Group, and that's the account that I'm working on, and Halion is with Publicis globally as well. So yeah, I'm looking after all the conventional mediums, for example, TV, radio, print, and I'm doing all the planning for them. Perfect, perfect. So, you know that this is a chit chat of Yeah. LinkedIn chit chat series. Um, let's start with what you think, like, what's growth for you? Like, for example, if I say, if someone asks you what's growth, so what's in your mind? I think growth is, when you're not stopping and you keep on learning, right? So, in my opinion, I feel like growth is when you keep on learning, right? You're never stopping. You also learn how to, evaluate yourself, you know, and then work on those points. So it's not just learning skills or anything like that, but also trying to evolve with time, evolving yourself based on all the evaluations that you've made. So I feel like that is what is growth to me. So with time, you're also not only growing career wise, but you're also growing personally. Perfect, perfect. So, as you know that LinkedIn also take a lot of like बहुत बड़ा हिस्सा LinkedIn का है जो अगर आपकी पर्सनल ग्रोथ या मैं ये कहूँ प्रोफेशनल ग्रोथ में बहुत बहुत जरूरी है. So, what do you think what's the main importance of LinkedIn in a professional career? How you take it, and do you have anything in mind या आपकी कोई strategy होती है that can people can learn from it? Like, I'm pretty much sure you started from somewhere and then now you mashallah working in Adcom. So how's your experience LinkedIn? How LinkedIn give you the overall advantages in your overall career? So I feel like whenever I'm meeting somebody professionally, I do try to search them up on LinkedIn as well, because that's what people do. I feel like that time is gone where people are sharing their cards. They're like, oh, like look at me, this is my designation and all. People are sharing their numbers and then probably like LinkedIn profiles as well. So I feel like this is happening a lot in the gatherings as well. And I feel like LinkedIn plays a very important role. So even when I was back at Runway, when I was hiring people, I would look at their LinkedIn profiles, and I feel like that's very important in order to showcase your portfolio as well, right? All the work that you've done, your experience, and everything's just at one place. I feel like your resume cannot really, capture the whole thing because it's just like one page, right? But your LinkedIn profile is very detailed. You can add as much details as you want. So I feel like professionally it really helps you, and secondly, it's also good for building connections, right? Because all the professionals are on this platform. So I feel like other platforms, such as Meta and all, they're good for socializing, but LinkedIn plays a very important role in building those professional connections, right? So if somebody messages me on LinkedIn, asking for help, I will definitely reply them, compared to if somebody's just asking me for help on some other platform, right? I will be a little skeptical because I understand the nature of this platform. I understand that this platform is being used for connections and building connections, basically, right? So yeah, I feel like this is the importance of LinkedIn. ऑल्सो हम बात कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत लाइक दैट्स माय assumption as well. Maybe Ariba, you can also chip in some of your information. Last 2 years, people are now coming to LinkedIn and they are like growing their network. Um, Apparently, इससे पहले शायद लोगों को लगता था कि it's just a platform if you want to go out, so you can just have to make a profile so HR can reach out to you. What like I'm pretty much sure जब आप रनवे में थे तो आप लोगों की हायरिंग भी करते होंगे बाकी सारी चीजें. So what change do you see? For example, अगर मैं आज से 2-3 साल पहले की बात करूं तो LinkedIn पे लोग कि एक्टिव कैसे थे लोग और अब के हिसाब से टू बी वेरी ऑनेस्ट आपका आपका मैटर इसलिए भी करते हैं क्योंकि यू आर फ्रॉम अ वेरी डाइवर्स बैकग्राउंड. यू आर वर्किंग फॉर रनवे. इट्स अ टोटली डिफरेंट
ball game or reach, and now you're working for AdCom. So how this thing you see कि यार ये अच्छी चीज है लोग जो कर रहे हैं. What are the pros and cons that you are seeing regularly? Because I'm pretty much sure a lot of people are trying to connect with you on LinkedIn, or maybe trying to have you, like you have a lot of people in your connection as well. तो क्या लग रहा है आपको कि ग्रोथ प्लान का चार्ट जो है अब लोगों ने काफी ज्यादा ड्राइव कर दिया है? इज इट अ गुड थिंग? एंड व्हाट डू यू थिंक यार हमें कहाँ से कब स्टार्ट कर देना चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट? So I feel like, I'll just, share my journey as well with LinkedIn because I joined a couple of years ago. I remember my dad telling me to join LinkedIn when I was in university, and back then I didn't really like understand the importance of the platform. He himself was on LinkedIn and he had been using it and all, and तब तो खैर इतने features भी नहीं थे इस platform पे. So I remember him telling me that, like you're in your university life now, now's the right time that you should start your own LinkedIn profile banao, start connecting with people and all. And back then मुझे realize नहीं हुआ था. Anyway, fast forward to my first job. I made my own profile and all, and it helped me in connecting with people. And I feel like, over the years a lot of people have understood how to use this platform. Initially people did not know how to make their own profiles. What are the important factors that you need to look at when you're creating your own profile? क्या क्या चीज़ें important होती हैं, क्या नहीं होती हैं, किस तरीके से आपने अपनी headlines लगानी है, क्या करना है, so it's easier for people to search you. So I feel like people have evolved as well with time. And पहले मैं इतना नहीं देखती थी कि लोग पोस्ट लगा रहे हैं क्या. I've seen people posting their personal pictures as well over there, and then trying to just engage with people. And I feel like it's just a little irrelevant over here. Okay, professional platform hai, so this is just my personal opinion. Everyone has their own opinion as परफेक्ट, well. You can परफेक्ट. yeah. इसी So इसी टॉपिक के बीच में फिर आपने जो ये बात करी है, सो व्हाट्स योर थॉट्स ऑन, आई एम प्रीटी मच श्योर यू हैव आल्सो सीन अ लॉट ऑफ पीपल आर पोस्टिंग कि उनकी शादियां लिंक्डइन से हो रही हैं, और अ yeah, लॉट ऑफ पीपल आर ट्राइंग टू मेक दिस प्लेटफॉर्म आल्सो एज लाइक इंस्टाग्राम और टिकटॉक. आई टोटली अंडरस्टैंड द पॉइंट कि हर बंदे का एक अलग माइंडसेट होता है, बट do you think कि this is something that can help you in the प्रोफेशनल कैरियर, व्हाट आई से? और मे बी के ये जो लोग कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म को इस तरीके से यूज कर रहे हैं, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से मुझे ऐसा लगता है कि लिंक्डइन इज वेयर पीपल कम टू नो यू एज अ प्रोफेशनल. लाइक आप प्रोफेशनली क्या कर रहे हो, व्हाट्स योर ग्रोथ प्लान, आपका लीडरशिप क्वालिटी कैसी है, बट व्हाट्स योर थॉट्स इन इट कि लिंक्डइन को exactly. लिंक्डइन I को होना would चाहिए फेसबुक जैसा? नहीं. exactly, I would say the same. I will, I feel like our thoughts are resonating, and the बहुत similar lines पे हम लोग सोच रहे हैं. I would also say the same because, if you see me on Instagram, I'm a complete different person, right? And if you see me on LinkedIn, I'm a very different personality over there. So yeah, I feel like LinkedIn is a very professional platform, और उसको उसी तरीके से रखना चाहिए. And you have other platforms for all that fun and enjoyment and all those reels and all. You have, Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat for all of that. So LinkedIn, I feel like, should stay the way it is because it's very helpful in getting those professional connections, right? अगर मैं उसको भी as a Instagram treat karungi, that will make me feel like, oh, like, maybe I'm not very serious about the platform, right? It's a very, that's what I would say. And this is what my thoughts are as well, because I keep both of my, profiles very separate. Like my professional profile is very separate, and my personal and public profile is very separate. So एग्री, yeah, that's how it should be, in my opinion. एग्री ऑन द पॉइंट. इसी से एक और चीज कनेक्ट भी होती है कि आई एम नॉट श्योर लाइक पीपल आर अवेयर ऑफ इट कि यूजली लोग लिंक्डइन पे होते तो हैं लेकिन दे आर नॉट ऑप्टिमाइजिंग देयर कंटेंट. नॉट इवन ऑप्टिमाइजिंग, इफ आई से पीपल यूजली जस्ट पुट थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन डाल के बस किसी तरीके से प्रोफाइल कंप्लीट करते हैं. व्हाट्स योर थॉट ऑन इट कि अबाउट सेक्शन है, कवर है, आपकी पिक्चर है, योर एक्सपीरियंस है. मैंने बहुत जगह ये भी देखा होगा, और आप यू ऑल्सो गोन थ्रू इट, कि लोग एक्सपीरियंस में ये डाल देते हैं कि हमने कहाँ काम करा है और कब से कब तक काम करा है. बट आई थिंक जेडी के अंदर आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, बिकॉज आई थिंक हर कंपनी या हर जगह पे काम करने की आपकी हो सकता है कि पोजीशन सेम हो, बट आपकी जेडी रिफ्लेक्ट करती है अलग अलग. व्हाट डू यू थिंक
दिस इज समथिंग कि लोगों को ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ अब जो लिंक्डइन पे तो आ गए, बट दे आर नॉट फाइंडिंग इट एट अ राइट वे, क्योंकि वो या तो ऑप्टिमाइज नहीं कर पा रहे, ऑप्टिमाइज एज इन नॉट इन कीवर्ड्स एंड ऑल, वो भी एक पॉइंट है, बट यूजली लोग करते क्या है कि यार बस आपने कंटेंट लिख लिया, यू डोंट गो थ्रू इट, इज इट लाइक आपके बैकग्राउंड से मैच करे, Hmm. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इन 2024 एवरीवन इज, जो आपकी प्रोफाइल पर आता है वो आपके बारे में जानना चाहता है, व्हाट्स योर एक्सपीरियंस, व्हाट यू हैव गॉन थ्रू, व्हाट्स योर अचीवमेंट, सो व्हाट्स योर पॉइंट ऑन लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन, और आई विल से पर्सनल ब्रांडिंग काइंड ऑफ अ थिंग. Yeah. So as I mentioned that resume is just one piece of paper, right? आप उसमें सब चीज़ें नहीं डाल सकते because you need to be very concise. You know, you have to be very choosy in terms of what you're putting it out there on your resume. But with your LinkedIn profile, it's like the platform is yours. Take it and own it. और अपनी personal branding जितनी वहाँ पे कर सकते हैं करें, because that will help you in standing out. So if I would, मैं अपनी बात जैसे करती हूँ कि मैंने अपने वहाँ पे प्रोफाइल में जो भी मेरा experience, I haven't just added my experience. I've also mentioned what I was doing over there, because that is very important. Again, I would also say the same कि for example किसी एक agency में अगर account manager की position है, दूसरी एजेंसी में उसकी जेडी डिफरेंट हो सकती है, नॉट नेसेसरीली कि आपकी सेम जेडी होगा, आपका क्लाइंटल डिफरेंट होगा फॉर श्योर. सो मेंशन अबाउट योर क्लाइंट्स, राइट? द क्लाइंट्स दैट यू आर वर्किंग ऑन फॉर एजेंसी पीपल, राइट? This is just for them, the clients that you're working on, the type of work that you're doing, the amount of people that you're managing, coordinating with vendors and all. ये सारी details are very important in uh, you know लोगों को इससे आपको पता चलता है, हायरिंग मैनेजर्स को पता चलता है कि ओके फाइन, आपका कितना डाइवर्स एक्सपीरियंस है. अगर मेरा एक्सपीरियंस देखा जाए तो आई वुड स्टिल से कि मैंने इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं डाली जितनी मुझे डालनी चाहिए थी उस पर. आई स्टिल फील लाइक आई नीड टू वर्क ऑन दैट. बट यस, about section, your headline, I feel like your headline matters a lot. For example, if I'm a media planner, right? So I will mention that in my headline as well. So if somebody's, let's say looking for media planners, they want to connect with media planners, they want to, figure out what the industry is doing these days and kitne media planners hain, kya hai, whatsoever they want to do. If they're just going to search media planner, aapki profile pop up honi chahiye, right? So I feel like that is very important. And I remember back in university, we had this course where we were actually, taught about social media marketing and all. और उसमें एक क्लास थी जिसमें हम लोगों की लिंक्डइन की प्रोफाइलिंग के ऊपर बात हुई थी. एंड आवर टीचर वाज लाइक कि यू नीड टू गेट ये वाली recommendations एंड ऑल, एंड यू गाइस नीड टू फिक्स योर प्रोफाइल. ही एक्चुअली टॉट अस हाउ टू फिक्स योर प्रोफाइल, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से लिखना है. सो आई फील लाइक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यूनिवर्सिटीज ऑल्सो नीड टू फोकस ऑन दिस. आप सिर्फ किताबी बातें करके आगे लोगों को नहीं प्रिपेयर कर सकते. यू नीड टू प्रिपेयर दीज किड्स फॉर द रियल लाइफ, राइट? फॉर द प्रोफेशनल लाइफ, एंड दिस थैंक इज a थैंक huge यू part सो of मच it. फॉर मेंशनिंग दिस. मेरा नेक्स्ट सवाल तो नहीं कहूंगा, नेक्स्ट हम टॉपिक पे ये भी डिस्कस कर सकते हैं. हाँ. व्हाट डू यू थिंक, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यूनिवर्सिटीज, मुझे ऐसा लगता है यूनिवर्सिटीज आपको बहुत बेसिक सिखाती हैं, कहीं पे वो चीज़ सही भी है, बट अपेरेंटली आवर फील्ड आर ग्रोइंग वेरी वेल, मतलब वो बहुत तेजी से Yeah. बढ़ रही है. वी आर ऑलवेज इवॉल्विंग, नए एआई टूल्स आ रहे हैं. खैर एआई की बात नहीं भी Yeah. करते, दे आर लाइक इनोवेशन, बिकॉज एडवर्टाइजमेंट और मीडिया रिलेटेड फील्ड इज मोर लाइकली ग्रोइंग एवरी डे. वंस Yeah. यू सी कि यार आज कोई चीज है और कल आप देखते हैं अच्छा ये नई कैंपेन आ रही है. सो व्हाट डू यू थिंक, लाइक यूनिवर्सिटी शुड हैव दीज सॉर्ट ऑफ क्लासेस rather than बेसिक थिंग होनी चाहिए, लेकिन डू यू थिंक पर्सनल ब्रांडिंग, लिंक्डइन, नॉट ओनली लिंक्डइन या पर्सनल ग्रोथ के ऊपर, क्योंकि व्हाट आई सी इज के आप बेसिक्स तो सीख लेते हैं, बट व्हेन यू गेट टू द पॉइंट, जब आप अपने प्रोफेशनल कैरियर में आते हैं, यू गॉट अ वेरी बिग हार्ट अटैक दैट कि ऐसा तो है नहीं. सो व्हाट यू थिंक? I feel like a lot of universities should focus on this personal branding, and किस तरीके से one should go and present themselves in an interview as well. Resume किस तरीके से बनाना है. I feel like universities need to teach the younger generation, the newer generation, about all of these things, because I feel like a lot of the interns as well, they don't know how to. They're applying for internships, right? They don't know how to make their own resume. सो आई फील लाइक ये सब चीज़ें पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ फोकस करती हैं. आई विल डेफिनेटली गिव देम अ ह्यूज शाउट आउट. बट दूसरी यूनिवर्सिटीज़, they need to focus on this. They need to focus on personal branding. They need to focus on how the person is dressing as well for like a professional place.
इन टर्म्स ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग के अलावा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ऑल, इन सब चीज़ों पे सॉफ्ट स्किल्स पे वर्किंग करनी चाहिए। बिकॉज आप बुकिश बातें रट्टा लगवा के सिखा दोगे, फाइन, कॉन्सेप्ट्स आपने सिखा दिए, बट यू नॉट प्रिपेयरिंग देम कि आपको रियल लाइफ प्रॉब्लम से किस तरीके से डील करना है। इवन मैं अपनी बात करूंगी, आई स्टार्टेड वर्किंग व्हेन आई वाज इन माय थर्ड ईयर ऑफ यूनिवर्सिटी, and I feel like a lot of the things that I learned were in my professional career. और मैं मुझे लगता था कि बस यूनिवर्सिटी में जा रही हूँ, टुवर्ड्स द एंड आई वाज जस्ट लाइक बस मुझे पास करना है क्योंकि मुझे डिग्री लेनी थी। आई वाज लाइक आई एम नॉट लर्निंग एनीथिंग ओवर देयर। um but yeah, that is how it is, and unfortunately our curriculums are not really up to the mark, I feel like. um उस पे थोड़ी सी वर्किंग होनी चाहिए, स्पेशली बट करिकुलम्स पे। बट अरीबा में इसमें फिर एक और पॉइंट भी है कि इट्स नॉट अबाउट द करिकुलम है, फॉर एग्जांपल इट्स आल्सो अबाउट योर पर्सनल इंटरेस्ट। मैंने ये चीज देखी है कि टू बी वेरी ऑनेस्ट यस, आई विल एग्री। आई लिव इन कराची फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और मैंने चीज देखी कि लोगों हमारे यहाँ ना ब्लेम गेम बहुत है। ठीक है, वो लोगों को ऐसा लगता है कि यार अगर एचआर प्रोफेशनल्स को आप सीवी भेज रहे हैं, सो आई थिंक आपने उन पे कोई एहसान कर दिया है। यू नेवर डबल चेक लोगों की स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं। I'm not sure, बट एक लोगों को ईमेल या करने ईमेल, क्योंकि आई थिंक योर फर्स्ट इंप्रेशन इज द मेन थिंग। ऑल्सो इट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट टू लर्न फ्रॉम डिफरेंट पीपल। व्हाट आई सी कि लोगों को दूसरों से सीखने में थोड़ा सा मसला हो रहा है पाकिस्तान में स्पेशली, क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि ये आइडिया जनरेट कैसे हुआ। मैंने एक पोस्ट डाली एंड आई गॉट अ लॉट ऑफ रेज्यूमेस हम्म। एंड आई गॉट टू द पॉइंट कि द प्रॉब्लम इज नॉट इन द रेज्यूम, क्योंकि यू कांट पुट एवरीथिंग ऑन योर रेज्यूम। क्योंकि या आप अपने बारे में कितना ही बता लोगे। आप जितना ही बता लो, मुझे तो ऐसा लगता है कि जब भी आप इंटरव्यू जाते हो तो पहला सवाल आपसे ये होता है, प्लीज टेल मी अबाउट योरसेल्फ। या अगर वॉक मी अबाउट थ्रू योर, योर सीवी। या लाइक एनीथिंग विदाउट, लाइक जो आपकी सीवी में नहीं है, दैट आल्सो कनेक्ट विद अनदर थिंग, कैरियर काउंसलिंग। या व्हाट यू थिंक? क्योंकि इट शुड आल्सो स्टार्ट फ्रॉम अ वेरी बेसिक लेवल। लोगों को ये पता नहीं है कि हमें कैरियर पाथ चूज क्या करना है, और बहुत सारे लोगों ने वो चूज कर लिया एंड दे डोंट यूजली कनेक्ट विद पीपल। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी या आप कोई कैरियर पाथ चूज कर रहे हो, तो आई थिंक if you choose it now, then it's your responsibility to connect with people who are in the industry, so to know more about that. So what do you think? अभी मैं इससे ये पूछना चाहूंगा या इस चीज पे डिस्कस करना चाहूंगा, building connections, what's the importance of building connection for you, how it impacts your overall profile or your overall career? क्या ये सही तरीका है लोगों से कनेक्ट करके? क्योंकि मेरी एक राय हो सकती है, बट आई रियली वांट टू नो व्हाट अरीबा मुख्तार रियली वांट टू हैव अ थॉट ऑन इट, कि कनेक्शन बिल्डिंग का क्या सीन है यार। कनेक्शन बिल्ड से क्या फायदा हो सकता है, और क्या फायदा हो रहा है, और आपको अगर हुआ है तो क्या हुआ है? कनेक्शन बिल्डिंग का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, आई फील लाइक। आई डोंट नो इफ आई शुड से, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे a lot of the इट्स अ positions इट्स अ are इट्स अ being इट्स filled. इट्स अ चिट चैट सेशन, यू कैन इट्स Yeah, so like a lot of the positions over here in Pakistani companies are being filled just on the basis of connections, right? So this is very real. So which is why I really, emphasize on creating those contacts, creating connections, and building that relationship, right, with people. Because आजकल के दौर में अगर आपने आगे बढ़ना है तो ये तो करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, ये तो मैं रेकमेंड करूंगी सबको करें। और कनेक्शन बनाने का बट सबसे बेस्ट तरीका लिंक्डइन तो है ही, राइट? LinkedIn to hey for sure, but it's also like I feel like a lot of these events that are happening, right? Corporate events जो हो रहे होते हैं. So for example, I recently went to this Meta event, right? Meta's event जो हुआ था, and I felt like I reconnected with a lot of people that I knew, right? जो industry में that I knew people, but haven't met for so long. So I feel like these are also very good socializing events. जिसमें if you're invited, definitely go. So events, LinkedIn to for sure है ही. And yeah, what else? I feel like friend circles, maybe I think you need to be a little like, oh, okay, fine. You need to know where your friends are also working. You need to be nice to all of your friends. They might get you in positions.
So yeah, एग्री, I feel like building connections तो ये. टोटली एग्री, टोटली एग्री। अभी आपने ये चीज मेंशन करी कि यार बहुत सारी जगह जो है कनेक्शंस के हिसाब से हायरिंग होती है, बट आई थिंक इसमें गलत नहीं है, क्योंकि Yeah, एवरी एवरी पर्सन हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी। और आई थिंक अगर मैं अपनी बात करूं या आप अपनी बात करें, और अगर हमें अपनी टीम में कोई बंदे को हायर करना है या हम कभी किसी के लिए हायर करते हैं, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड नो वन इज, to be very honest, on yeah, yeah, yeah. live record, I want to say that no one is going to recommend until or unless he has a fully like 100% trust in you, For कि sure, you for can you sure. can you can do that। तो आई थिंक जो पहले हमारे अब्बा लोगों के जमाने में कहा जाता था कि भाई आपका पर्ची कह लें या व्हाट्सोएवर रीजन, मतलब जो भी आप वर्ड यूज हम्म. कर सकती हैं, नहीं, आई फील लाइक इट्स आजकल चेंज के बाद इनटू ना वो कनेक्शन। पर्ची तो नहीं है, वो ये है कि आपको इंटरव्यू तक पहुंचा देंगे, राइट? बाकी आगे आपका भी काम है, राइट? सो हाँ, यू आल्सो हैव टू प्ले योर रोल. लेकिन लेकिन एक और चीज ये भी तो है कि हमारी, ये तो मसला ये है ना, कि मेरा सवाल यही है कि लोग कहते हैं कि यार हम इंटरव्यू तक नहीं, हम इंटरव्यू तक पहुंच जाएंगे तो हम कर लेंगे। द मेन प्रॉब्लम इज हाउ यू गोना कनेक्ट विद द इंटरव्यू। आपको एम्प्लॉयर जानता ही नहीं है, या आपने अपना काम इस तरीके से इंडोर्स ही नहीं करा हुआ, ठीक है, या इस या, तरीके से चीजें नहीं करी हुई। दैट कम्स टू अनदर पॉइंट ऑफ द कॉन्वर्जेशन, कि कंटेंट स्ट्रेटेजी और एंगेजमेंट, मतलब या, हाउ यू आर एंगेजिंग थिंग। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मैं बहुत सारे लोगों से, लोग मुझसे पूछते हैं कि हम क्या पोस्ट करें, एंड आई वाज लाइक, पोस्ट अबाउट व्हाट यू लाइक, पोस्ट या, अबाउट व्हाट अबाउट योर वर्क। क्योंकि आई थिंक लिंक्डइन, सिर्फ लिंक्डइन नहीं, ठीक है, यू नीड टू शोकेस योर वर्क एज वेल। बिकॉज एट सर्टेन पॉइंट ऐसा हो सकता है कि अरीबा माइट नॉट हायरिंग राइट नाउ, बट इफ शी इज फॉलोइंग या, योर, you are following her, so at certain point she remembers you or maybe connect with you, because a lot of my friends and a lot of my people in the connection, they are getting good clients from LinkedIn, and या. just showing their work, posting about their work, posting about their achievements or maybe achievements from other people, और सिखाना चाहिए। तो एग्री ऑन दैट पॉइंट बिल्कुल। ऐसा मेरे व्हाट साथ बहुत दफा हुआ है. आई वाज फॉलोइंग a few people, and then when I had the openings, I definitely reach out to them. Hey, listen, I have this position if you're interested and all. So with some, obviously, it worked out. With some, it didn't work out. So it's fine. But at least, they were on the top of my mind. So, like I've seen their work. Maybe I should reach out to them, right? So this happens. So you need to showcase your work. आप जब जितनी अपनी अच्छी personal branding करेंगे, जितना आपका नाम होगा, so definitely people will reach out to you. you mentioned that you are working for Adcom and working for different brands. I totally believe that a lot of account managers and a lot of people who are somewhat doing social media management or related to those field, account management kind of a thing, I usually see people don't have portfolios. What do you think के portfolio की अहमियत क्या है? Number one, um, what is the right way in your professional background, कि अगर मैं किसी account manager की बात करूं, तो what's the right way to manage a portfolio, and how to like I see a lot of people who are sharing work. For example, if they're in any event, if they're managing any event, or if they're working for any clients, they're mentioning that things and they're like sharing things on LinkedIn. But what do you think is the right way if you are an account manager perspective? तो आपको कैसे अपना पोर्टफोलियो मैनेज करना चाहिए? इंडस्ट्री में कैसे पोर्टफोलियो मैनेज होता है? क्योंकि आई हैव कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ प्रोफाइल्स जो कि मेरे जॉनरा कह लें या मेरी फील्ड से रिलेटेड हैं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट अभी भी लोगों को काफी मुश्किलात हैं या लोग कर नहीं पाते, क्योंकि आई पर्सनली बिलीव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ डिफरेंट टास्क। क्योंकि It is for पीपल आर लाइक सब 9 से 5 काम करके इतने इतने ही फुल हो चुके होते हैं कि मुझे फिर ऐसा लगता है कि अगर आप पोर्टफोलियो मैनेज नहीं कर रहे, सो यू आर लाइक स्टक। क्योंकि मे बी अ पर्सन हु नो डायरेक्टली अरीबा कैन vouch for her कि यार ठीक है, she is a very good person, but what's your thoughts on portfolio management? Hmm. So portfolio management is very very important, especially for creative fields, right? Because उसमें तो आपका काम दिखाना ही होता है, right? And I remember I was hiring this person for a design job, and this was a few years ago, right? And he came to me, and I asked him, I was like, can you show me a portfolio? And he took out a USB drive. I was like, Mm. okay. And
मतलब उस टाइम तक तो बिहेंस इतना हो चुका था, राइट? बिहेंस बहुत हो चुका था, आई रिमेम्बर मैं तो अपनी यूनिवर्सिटी टाइम से बिहेंस यूज कर रही थी। तो ही हैंडेड मी अ यूएसबी ड्राइव, आई वाज लाइक ओके फाइन, लेट मी चेक इट आउट एंड ऑल। अब उसमें होता ये है कि you never really know if those designs are actually yours or not, right? Like you can't really even like say anything to the person, वो तो मुझे claim कर रहा है ना कि मैंने काम किया हुआ है, right? बट बिहेंस का फायदा ये है कि अगर आप किसी और के डिजाइन लगाते भी हो, पीपल कैन रिपोर्ट यू, राइट? लाइक यू कैन इजिली लाइक टेल पीपल कि यार नहीं, दिस इज नॉट his work, this is my work and all, because it's online, it's there for everyone to see, right? So then I hired that guy, the USB guy. I hired him because his work was nice. And then I forced him to make a Behance. I was like, you can't just keep on, like carrying your portfolio in a USB drive. Make your Behance profile. And I made sure that he made his Behance profile. So I feel like portfolio management, especially in creative fields, is very, very important. Baki fields may, yes, even if you're a writer, if you're an account manager, for sure keep a drive as in a Google Drive with you so it's accessible, it's easy to share, right? तो आई फील लाइक बहुत इम्पोर्टेंट है, बट आजकल के लोगों को आई फील लाइक इतना ज़्यादा इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, या इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा नहीं होता है कि आपका पोर्टफोलियो कितना मैटर करता है आपके लिए। इट टेल्स यू, इट टेल्स द हायरिंग मैनेजर द टाइप ऑफ वर्क दैट यू आर डूइंग, द टाइप ऑफ क्लाइंट्स यू आर वर्कड ऑन, द क्रिएटिविटी दैट यू कैन ब्रिंग टू द वर्क प्लेस, राइट? सो या, फॉर श्योर। एंड इस तरह की चीज़ों के ऊपर आई थिंक बात होती भी नहीं है इतनी। सो अब मैंने ये पॉइंट अभी इसलिए भी डिस्कस करना जरूरी समझा क्योंकि आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल हु आर डूइंग अ गुड जॉब बट लाइक दे आर वर्किंग वेरी वेरी गुड जो भी वो काम करते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिजाइन है, मोशन डिजाइन है, अकाउंट मैनेजर्स की बात कर रहे हैं। But what I see is कि यार not everyone in the world knows about you. So until or unless it's your work that tell about yourself कि आप उसको endorse कहाँ कर दें। And to be very honest अब तो शायद Behance प्लेटफॉर्म्स का आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। Behance, Dribbble, like every platform has different audience। ठीक है और या हर या हर प्लेटफॉर्म पे इम्पोर्टेंस बिल्कुल अलग है। अगर आपका फॉर एग्जांपल मोशन डिजाइन या वीडियो रिलेटेड कोई हुआ है तो मैंने आज भी बहुत सारे लोगों को देखा है कि लोग जो है गूगल ड्राइव के लिंक भेज देते हैं। एंड आई वाज हाँ। लाइक कि डूड दिस इज नॉट द राइट वे। Yeah, and I यू don't शुड have the time to, check your show reel. Like, I want to be able to pick and choose the type of work that I want to see. For और example, अगर show reel आप भेज देते हैं एक तो 2-3 मिनट की, hiring until or managers don't have the time. until or unless that you have some talent or something that is out of the box। क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे डेवलप ऐसे मोशन डिजाइनर्स या एनिमेटर्स या क्रिएटिव लोगों को जानता हूँ जिनका एक काम बहुत होता है बिकॉज द वर्क टेल अबाउट देयर सेल्फ। बट द पॉइंट इज कि यहाँ पे होता यह है कि द वर्ल्ड इज ग्रोइंग वेरी फास्ट। ठीक है Yeah, मुझे नहीं लगता कि यार आपके लिए कोई बंदा आपकी गूगल ड्राइव खोलेगा। आई हैव सीन लाइक मल्टीपल डिजाइनर्स मल्टीपल पीपल फ्रॉम डिफरेंट क्रिएटिव फील्ड वो करते ही हैं कि यार उन्होंने सब चीजें डम कर दी होती हैं। वो देयर इज अ वे ना यार आप अपना पूरा प्रोजेक्ट बनाएं उसमें अपना क्योंकि a design or a campaign is not just the final product, what I yeah. believe। क्योंकि जो मेहनत है वो तो प्री प्रोडक्शन में लगी है। So you should The also thought process and you everything. should Yeah, also explain your thought process, your behind the scenes, what the scripting is all about, how you generated the idea, how you generated the campaign, and like फिर जब कैंपेन लाइव हुई तो कैंपेन कहाँ कहाँ हुई। मुझे ऐसा लगता है कि वी आर इन अ साइकिल कि हम इतनी जल्दी काम कर रहे होते हैं कि लोग करते नहीं है। बट हाँ आई आई वुड लव टू मेंशन कि यार आप हाँ गूगल ड्राइव को एज अ बैकअप जरूर रखें कि आप वहां पे चीजें डम करते रहें। बट वेन एवर यू गेट टाइम नहीं मेरे को लगता है कि हमेशा आपको हर महीने कुछ टाइम निकाल के अपने पोर्टफोलियो को अपडेट करते रहना चाहिए। बिकॉज यू नेवर नो क्योंकि होता ये है कि लोग आप काम कुछ कर सकते हैं लेकिन कभी कभार बंदे को कोई स्पेसिफिक चीज ढूंढनी होती है। फॉर एग्जाम्पल if someone is looking for a 2D animator or someone is looking for a visual hmm. design in a specific field क्योंकि लोगों को ये समझ में नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए ऐसा नहीं हो सकता कि अगर डॉक्टर की पोजीशन खुली है बिरयानी या सॉरी डॉक्टर बोल रहा हूँ अगर शेफ की पोजीशन खुली है बिरयानी बनाने वाले की और आप भी शेफ हैं तो जरूरी नहीं अगर आप दाल चावल बनाते हैं तो आपको हायर करें क्योंकि उसको स्पेशलिस्ट चाहिए एक चीज में। व्हेन इट्स कम्स टू सोशल मीडिया, व्हेन इट्स कम टू पिच डेक, व्हेन इट्स कम टू I feel like मोशन people डिजाइन। don't specialize, right? यहाँ पे ये बहुत चीज़ों का बड़ा मसला है. And for a lot of like smaller companies as well, they want a one window solution.
देयर लाइक ए डिजाइनर ऐसा हो जिसको एनिमेशन भी आती हो. So this is a challenge that I also faced back then, and I was like, listen, these are two different things. You दिस इज can't call an animator a static designer. Like, दिस इज थोड़ा दिस सा. इज दिस इज अ लॉन्ग ड्यू डिबेट। व्हाट आई सी इज के देखें, डिबेट करनी नहीं चाहिए क्योंकि दिस इज हाउ इट इज, ठीक है। एवरी Unfortunately, या yes. अनफॉर्चुनेटली एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसमें गलत है भी और नहीं भी, क्योंकि अगर जाहिर सी बात है, हर एम्प्लॉयर अपना पैसा बचाना चाहता है। Hmm. अपेरेंटली कहीं ना कहीं वो लिंक्ड अप होती है, तो पता नहीं क्यों पाकिस्तान में ही सही, लेकिन बिल्कुल ना एक अलग ही एक बंदा बना दिया कि हम लोग क्रिएटिव डिजाइनर एनिमेटर हो जाता है, जो कि पोस्ट एनिमेट भी हो रही हैं और Yeah. पोस्ट डिजाइन भी हो रही हैं। ठीक है, वो स्टेप नहीं ले सकते, आपके पास पोजीशंस नहीं होती, सो यू आर लुकिंग फॉर मल्टीपल थिंग ऑल्सो। कि ये भी जरूरी नहीं है कि अगर आप जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स हो, अच्छी बात है यार अगर आपको सारी चीजें आती हैं, बट यू शुड हैव अ प्रॉपर पोर्टफोलियो दैट Hmm. शोकेस योर वर्क। स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए कोई भी. ऑल्सो ऑल्सो व्हाट आई पर्सनल बिलीव कि जॉनर टू जॉनर डिपेंड होना चाहिए। आप ये एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं कर सकते कि अगर अरीबा को अनटिल और अनलेस यू नो अबाउट डिटेलिंग यार, कि आपका काम बहुत डिटेल्ड है, लोग देख रहे हैं और लोग आपको कर सकते हैं। बहुत मतलब ऐसा होता है कि मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, मैं किसी के लिए काम कर रहा होता हूँ, तो उनको किसी अलग तरीके का काम चाहिए, तो बट दे सी डिटेल वर्क, तो हाँ वो कहते हैं ठीक है यार, यू कैन डू दैट, वाइस वर्सा, या ऐसा भी होता है कभी कभार। बट मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज ऑल्सो अनदर थिंग कॉल्ड पैशन प्रोजेक्ट। आई एम नॉट श्योर ये मैंने वर्ड खुद बनाया है, क्योंकि मैं तो उसको यही कहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि यार अगर आपके पास क्लाइंट्स नहीं है, अगर आपके पास काम नहीं है, सो द थिंग इज ओनली अ ब्रीफ। आप अपने आप को ब्रीफ देके एक सेल्फ डिजाइन जनरेट कर सकते हो या सेल्फ कैंपेन जनरेट कर सकते हो। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो कि आई एम नॉट श्योर कि जैसे डिजाइनर्स और मोशन डिजाइनर्स को मिला दिया, आई थिंक आप इससे एग्री करेंगी कि सोशल मीडिया मैनेजर्स और अकाउंट मैनेजर्स को मिला दिया, क्योंकि Yes. अच्छा इस वक्त में थोड़ा सा एक Been there, हाईलाइट, done that. इस चीज को थोड़ा सा हाईलाइट करना है, रिवा। व्हाट इज द की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अकाउंट मैनेजर एंड व्हाट आर द की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ सोशल मीडिया मैनेजर? So the account manager is just the POC between the client and the agency, right? And a social media manager is responsible for posting, creating content में आपका याद आता है. अच्छा, so there's like multiple legs in an agency as well. There's a creative side, right? क्रिएटिव आपको पूरे कंटेंट कैलेंडर्स का कंटेंट बनाकर देते हैं, सारी चीज़ों का कंटेंट, कुछ भी आपने लिखवाना है आप उनके पास जाएंगे. अकाउंट मैनेजर्स का काम नहीं है ये, ठीक है. अकाउंट मैनेजर्स उनके पास जाते हैं क्रिएटिव के पास कि लाइक दिस इज द ब्रीफ, राइट द होल थिंग फॉर मी, क्रिएट अ कंटेंट कैलेंडर. क्रिएटिव वो पूरी चीजें करता है, उसके बाद क्रिएटिव फिर तो डिजाइन के पास जाता फिर है, तो डिजाइन से वो आता है सोशल मीडिया के पास, सो फिर दिस तो इज द फिर तो होल सेम हो प्रोसेस. गया, जैसे हम डिजाइनर्स और मोशन डिजाइनर्स को सेम समझ रहे हैं, आई थिंक सोशल मीडिया मैनेजर्स और एग्जैक्टली. अकाउंट मैनेजर्स को भी सेम चलते जा रहा है। बट आई एम पर्सनली बिलीव कि अब लोगों में काफी ज्यादा इसकी नॉलेज आ चुकी है, एंड हाँ, एजेंसीज हाँ. नाउ डेज आर ऑल्सो लुकिंग फॉर स्पेसिफिक थिंग, क्योंकि a creative manager can't be an account manager, account manager can't be a social media manager, they are different fields. a part of it इसी से मैं एक चीज मैं सोच रहा हूँ, अभी आपसे जब बात कर रहा था कि what do you think are the common mistakes in your, like, I'm pretty much sure you are working for a longer period of time. You have seen a lot of people doing mistakes regarding to their growth, कि growth में वो क्या mistakes कर रहे हैं, are they not properly aligned with it, या वो उसमें ये भी आ सकता है कि टाइम मैनेजमेंट। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि लोगों को ये लगता है कि उनसे टाइम मैनेज नहीं हो रहा, क्योंकि अगर मुझे लगता है हम कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है, या बहुत सारे लोग हैं, मैं इतने लोगों को जानता हूँ जो टाइम मैनेज कर रहे होते हैं, बिकॉज देयर इज अ प्रोफेशनल लाइफ एंड देयर इज अ पर्सनल लाइफ एज वेल। So what are the mistakes in the growth plan? Also, what are the commonly mistake that you have seen on LinkedIn that people are doing? And what you suggest कि यार ये करनी नहीं चाहिए, या इससे क्या इम्पैक्ट होता होगा उनके प्रोफाइल्स पे? In terms of growth, I feel like people look for comfort and growth together, and that is not possible. अगर आपको कंफर्ट आ, मिल गया है तो आपको एक ग्रोथ टाइम नहीं तक, मिलेगी. एक टाइम तक। या बट स्टिल आई वुड जस्ट से कि अगर आपको कंफर्ट मिल गया है तो मोस्ट प्रोबब्ली आपको ग्रोथ उस तेजी से नहीं मिलेगी, मिल रही होगी टुक टुक करके, लेकिन उस तेजी से नहीं मिलेगी. बट अगर आपको ग्रोथ चाहिए देन यू हैव टू लीव योर कंफर्ट जोन, राइट? एंड आई फील लाइक आई लर्न दिस द हार्ड वे.
because I was just too comfortable at one place. And then I was like, I think I need to learn a new skill because I've done so much and all. At my first job, I did everything. I did everything from A to Z, and I was like, now what, So I feel like, okay, let's just, explore what other options do I have. And that's the thing that I also did, right? And I switched my career to media planning, and I feel like this has been a good decision, definitely not bad. I learned a new skill, which is a very demanding skill as well. So I feel like growth, agar aapko chahiye, you need to leave your comfort zone. If you're too comfortable, that means that there's something going on. It's like to leave the comfort zone or to leave the company. I have another question, अरीबा कि अभी हम बात कर रहे थे कि यार ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है कि वो कहते हैं ना कि कहीं से सही वक्त में निकलना बहुत जरूरी है कहीं पहुंचने के लिए। Yeah, सो वो कहीं yeah. से निकलने के लिए कितना वक्त चाहिए एक जगह पे, नंबर वन। नंबर सेकंड, व्हाट डू यू थिंक यार, व्हाट शुड बी योर गोल प्लान व्हेन यू आर वर्किंग इन सम ऑर्गेनाइजेशन? बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो लोग जॉब स्विच नहीं करते, 5 5 10 10 साल एक जगह काम करते हैं। हो सकता है उनकी अलग थॉट प्रोसेस हो और वो शायद उनके लिए बिल्कुल ठीक हो, बट व्हाट डू यू थिंक, कितने साल बाद स्विच करना चाहिए? स्विच करते हुए क्या देखना चाहिए? और इज मनी मैटर टू यू? So I feel like there's no timeline for switching, right? My only timeline, the way that I would gauge it is कि अगर आपको लगता है कि आपने सब कुछ सीख लिया उस रोल में रहते हुए, and the job seems too easy to you now, you're like, okay, fine, like, what's next? What do I do now? I feel like that's when you should switch. Why? Because then अगर आपने सब चीजें एक जगह पे सीख ली हैं, then what's left, right? ये हो सकता है 1 साल में हो, 2 साल में हो, 3 साल में हो, 10 साल में हो, राइट? सो देयर इज नो टाइमलाइन टू इट, बट येस, too many frequent switchings are also something that a hiring manager looks at the CV and they're like, oh, like ये तो कहीं किसी जगह पे रुकते नहीं है, अगर आप 4 4 5 5 महीने में switch कर रहे हो, that's also not nice. So इट्स definitely गुड दैट refrain यू आर from गेटिंग अ that. लॉट ऑफ, इट्स गुड कि वो कौन से लोग हैं जिनको इतनी ऑफर्स मिल रही हैं, बट ठीक है चले। Yeah, yeah, that's ओके। that's definitely not a right approach, right? Because आप एक जगह पे रुके हैं, और या तो फिर अगर आप 3 3 महीने में switch कर रहे हैं, तो वो आप अपनी resume में डालेंगे ना, right? Because just show it as like a career break, or a gap or something, because it just does not look nice, right? Uh, Even if you add it as a career break, that's fine. Like, you can take a career break, right? So that also is fine. Again, secondly, the second point is, yeah, money does matter, right? Because you're working for money, and if money is not involved, then what's the whole point of working? मतलब मेरे बाप की कंपनी तो नहीं है ना. फेयर इनफ, फेयर इनफ। सीधी सी तो बात है. कम टू द पॉइंट कि um, इट्स कम टू द पॉइंट कि यार ये मुझे पता नहीं, मुझे सवाल पूछना चाहिए लेकिन लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन दैट। डू यू थिंक कि हो सकता है मैं गलत हूँ, बट ज्यादातर अकाउंट मैनेजर लड़कियां होती हैं, क्यों होती हैं? और लड़के होते हैं तो मतलब मैंने सिर्फ देखा है, मैं सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए चाह रहा हूँ। मेरे पास एक अलग पर्सपेक्टिव है इसके लिए कि क्यों होती है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि गर्ल्स आर मोर मोर एक्सप्रेसिव, व्हाट आई सी, दे हैव मोर टूवर्ड्स मैनेजमेंट स्किल्स, के हाउ टू ड्रेस और हाउ टू टॉक टू पीपल a lot much better than a boy or a man. Do you think account managers is only the field for girls, or there's like, what's your thought on it? it's definitely not only a field for girls, but I feel like a lot of the women are in this field because it's easier. This role is easier to manage, right? Because you're just coordinating with the client and all. Yes, it's hectic. You always have to be on the go, right? कि आपको always available होना होता है. But it's just, कि थोड़ा सा communication skills are also better girls की, in my opinion. I could be wrong as well. Men are also very good communicators out there, definitely, for sure, not saying that. But I feel like girls are much more understanding too, right? थोड़ा सा समझती हैं situation को and all. This is just my personal opinion, what I've seen as well. But I've worked with account managers that are also men, right? And they're brilliant. They can handle situations very अच्छे तरीके से भी. So I feel like, yeah, but ये है कि यहाँ पे पाकिस्तान में, yes, you are right, a lot of the account managers are girls. So I will not deny. Honestly, I also keep on thinking, why is that so?
मेरा But थॉट let's not प्रोसेस deviate from the topic. मेरा थॉट प्रोसेस ऐसा लगता है, लेकिन आई टोटली एग्री विद योर पॉइंट, एंड इट्स गुड टू हैव द डिस्कशन एज वेल, क्योंकि लोगों को काफी ज्यादा लोगों को लगता है कि यार दिस इज अ पोजीशन फॉर गर्ल्स, अ लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग इट, ओनली गर्ल्स हैव द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग इट। इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट, यार अगर आप चीज को अच्छे से कर सकते हो देन यू कैन एस एनी पोजीशन, आई दैट्स माय पर्सनल क्राइटेरिया। Yeah, yeah. नाउ कम टू द पॉइंट कि लर्निंग एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं। What I see that now, mashallah, a lot of people are doing a lot of different courses for from platform like Coursera, Domestika. There are a lot of related courses that I can highlight with respect to my field, like product school से हैं, school of motion के courses हैं. A lot of people are doing license and certification. Do you think this learning development become a great part in your career growth also? What's your point on it? Are you did you have any like recent licensing or certification जो आपने करी है, जो आपको लगता है यार ये बहुत जरूरी है? क्योंकि मुझे जहां तक लगता है, मैंने तो कुछ ही क्योंकि मेरी फील्ड तो है नहीं, लेकिन मुझे कुछ पता है, जैसे कि यार फेसबुक का ब्लूप्रिंट का कोर्स है, गूगल के हैं, यूआई यूएक्स के कोर्स होते हैं दैट आर इजीली अवेलेबल। टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो फाइनेंशियल एड पे मिल जाते हैं, बट दैट्स अ डिफरेंट डिबेट कि लोगों को ये लगता है कि हर चीज फ्री पैसों की आती है। सो व्हाट्स योर थॉट ऑन लर्निंग डेवलपमेंट, लाइसेंसिंग एंड सॉरी लाइसेंसिंग कह रहा हूँ, सर्टिफिकेशन वगैरह जो लोग कह रहे I feel like certifications are very important for your personal growth as well because let's say for example if you're a digital marketer, right? डिजिटल मार्केटिंग के आप जितने कोर्सेज करेंगे उतनी आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। तो फेसबुक ब्लूप्रिंट इज कंसिडर्ड एज a very difficult course, right? And it's a paid certification कि ये आपको कुछ अमाउंट दे के वो सर्टिफिकेशन करनी होती है, एंड इफ यू फेल, राइट? दैट्स अबाउट इट। So it's a very good certification to do, similarly जो आपके गूगल के सारे सर्टिफिकेशंस होते हैं। So इससे आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, ऑनेस्टली। एंड आई फील है कि आप जिस भी फील्ड में आप उसके रेलेवेंट कोर्सेज करें ताकि आपकी उस फील्ड में क्रेडिबिलिटी बढ़े कि ओके फाइन, लाइक दिस पर्सन हैज डन दीज सर्टिफिकेशंस एंड ऑल, सो देर इम्पोर्टेंट इन माई ओपिनियन, करनी चाहिए। और मेरा तो ये कहना है कि अगर आप दिल लगा के कर रहे हैं, राइट, इफ यू आर नॉट चीटिंग ऑन दोस कोर्सेज देन इट्स वैल्यूएबल, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट इन जस्ट हैविंग अनदर पीस ऑफ पेपर। ऑनेस्टली वो तो बिल्कुल एक डिग्री की तरह है देन। जिस तरीके से आपने डिग्री ली है, अ पीस ऑफ पेपर, अगर आपने सही तरीके से नहीं पढ़ा, चीट करके किया है सब चीजें, देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ द होल डिग्री एज वेल। सिमिलरली गोस फॉर सर्टिफिकेशंस एज वेल, इफ यू आर डूइंग इट ऑन योर ओन विदाउट एनी हेल्प, without any AI or without any, Google searches and all, then you're good to go for sure. It increases your knowledge and your credibility. Yeah. हैं? परफेक्ट। आई थिंक दैट्स अ लॉट ऑफ कंटेंट जो कि काफी लोगों को हेल्प आउट करेगा। थैंक यू सो मच अरीबा फॉर द इंसाइट अबाउट every step related to growth and LinkedIn. Just to end it up, do you have any like quotation or any suggestion to people who are looking to start their career in account management? What should they do, and what should be the advice from you? Is there anything that you want to share? So for account management and media planning as well, because I've experience in both, I feel like account management, in order to be a good account manager, you have to have empathy and you have to be understanding, right? लोग कहते हैं कि नहीं, you have to be very chalak and all, blah blah blah. No, honestly, that's not it. You have to have empathy and you have to understand what the client wants, right? Or उसी हिसाब से you need to be able to build that relation with the client, right? Even though I've been in this field for so long, right? Even in media planning as well, I'm doing client servicing as well, and I feel like a lot of the clients trust me because I've created that bond with them, right? They trust me so much. They're like, Ariba, we want you on this project, right? इस तरीके का मेरा bond बन चुका है because मैंने वो अपना एक level वहाँ पे दिखाया है कि यार you can trust me, right? So I feel like this is very important. And for media, for sure, yes, मीडिया का ये है कि मीडिया इंडस्ट्री इज ग्रोइंग, डिजिटल मीडिया का लैंडस्केप जिस तरीके से हमारे यहाँ पे ग्रो कर रहा है, सो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान बट इंटरनेशनली एज वेल। सो दिस इज़ अ वेरी गुड फील्ड टू जॉइन, डिजिटल मार्केटिंग एज वेल, वेरी गुड फील्ड्स टू जॉइन। सो मैं तो सबको रेकमेंड करूँगी जो भी न्यू बिगिनर्स हैं, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, राइट,
try to learn performance marketing, जहाँ पे भी आपको मौका मिलता है to get into this field, for sure go into this, बहुत scope है इस चीज़ में. Perfect. Thank you so much, Ariba. Thank you so much for your time. I really appreciate that you आपने थोड़ा सा टाइम निकाला हमारे लिए ताकि लोग भी कुछ सीख सकें और मैं भी कुछ सीख No सकूं. problem at all. Thank you so much, I think it Ariba. is Thank our you. time to give back to the community. So yeah, Ah, it's been so yes, long now. yes. So Thank you so much for giving this much knowledge. I'm pretty much thank you sure a so lot much of. for having me. Thank you, Ariba. Thank you.